or what had happened, why these people tends to take a look at other system, especially homeopathy? What was the reason? हर पैथी के अंदर स्कोप एंड लिमिटेशंस अपने अपने होते हैं, बराबर है. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम. वेलकम टू डायनामिक टॉक्स. एंड आज मैं जद्दा में हूँ और मेरे साथ है डॉक्टर मुजम्मिल. प्लीज़ डॉक्टर मुजम्मिल अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए. आप जद्दा में कहाँ से पहुँचे? Actually, my name is Mohammad Muzammil. I came from Hyderabad in 1994-95. So since then, I'm practicing homeopathy, physical therapy in different hospital. And lastly, I was there in King Abdulaziz University Hospital for 23 years. तो होम्योपैथी में कहाँ से आपका इंटरेस्ट आ गया और क्यों आया? Actually, I was having very severe house dust mite allergy. It was continuous cough for a long time when I was even before marriage. So I used to go here and then, used to solve the issue by many home remedies, but it couldn't. So finally, we went to family medicine physician and they recommend that you should have a basic test. Then they found nothing. They said only you have dust mite, and they referred me to at that time our immunologist. And our immunologist, he prescribed me at the time Pulmicort and Ventolin, and he said that your eosinophil is high, so you should continue forever. This thing, nothing. Then luckily I was able to meet one of our at that time practicing homeopath, Dr. Jamil Bishawari, and he looked at me and said that if you are from India, why don't you take homeopathy? So it was very strange for me that even though we were there using, but when we came here, we forget. Then I took a few doses of house dust mite, 200 weekly once. अच्छा. Then within, I used 2-3 puff of Pulmicort or Ventolin. That's I know. Then I was young, I was thinking that how can a young person before marriage using, it will be later on many complication. Since then till now, I salute homeopathy that I never ever able to take anything for my lungs. It was complete. क्या बात है, क्या बात है. तो हर किसी का एक कहानी रहती है कि किस तरह से वो होम्योपैथी में आते हैं. तो मुजम्मिल भाई की भी ये कहानी थी. आपको क्या क्वेश्चन है होम्योपैथी से? ऐसा कुछ इतने सालों में आपने क्या देखा, क्या क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि ठीक है, होम्योपैथी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है. वट एवर एवरी सिस्टम वी शुड रेस्पेक्ट इंडियो, वट एवर इज दैट. It might be Ayurveda, Unani, whatever you name it. But particularly homeopathy, what I have seen by past, especially pre-COVID and post-COVID, mainstream medicine, which we are saying modern medicine, these people, by which way, I don't know, they tend to have a little bit look at other system of medicine, particularly homeopathy. So in reverse, I will ask you that what is your experience being both allopathic and homeopathic? Why this trend only this post-COVID? जी हाँ, कोविड ठीक है पूरी दुनिया के लिए बहुत एक ख़राब एपिडेमिक था, पर होम्योपैथी के लिए साबित कर अपने आप को एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट बोल सकते हैं. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल अंडरस्टूड कि होम्योपैथी हैज़ अ चांस इन कोविड सिनारियो. डिफरेंट एस्पेक्ट्स, प्रॉपर कोविड, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, and post-COVID complications like interstitial lung disease or fibrosis or pneumonias and so on and so forth. Even post-COVID metabolic disorders जो है ये तो this has actually attracted, and इतने सारे homeopaths were active during COVID using homeopathy के दूसरे system of medicine से है. नॉट ओनली एलोपैथ्स मतलब मॉडर्न मेडिसिन में से, बट आयुर्वेद से ना हमारे यहाँ भी बहुत सारे दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स खुद के लिए और अपने पेशेंट्स के लिए होम्योपैथी लेने लगे हैं. इनफैक्ट हमारे कॉल्स जो मैं दूसरे हॉस्पिटल्स में जाता हूँ एज होम्योपैथिक इंटेंसिविस्ट और होम्योपैथिक कार्डियोलॉजिस्ट, तो वो कॉल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पोस्ट कोविड. तो येस, इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर होम्योपैथी एंड ऐसे ही चलते रहा तो होम्योपैथी अपने आप को अच्छी तरह से साबित कर सकती है. विथ यू, व्हाट वाज द रीजन दिस मॉडर्न मेडिसिन, इट्स ओके गुड इन इमरजेंसी सिचुएशन, पोस्ट कोविड आल्सो
वो लोग हैंडल नहीं कर सके? Was it unable to handle the post-COVID scenario? Or what had happened? Why these people tends to take a look at other system, especially homeopathy? What was the reason? हर पैथी के अंदर स्कोप एंड लिमिटेशंस अपने अपने होते हैं, बराबर है. तो पोस्ट कोविड में क्या हुआ कि इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस, इतने वेरिड टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आए हैं. In due respect of the diagnostic advancement, so wasn't there any cure or wasn't able to handle those things? Just what? नहीं, वही तो क्योर की बात ही नहीं. इतने सारे अलग अलग टाइप के कॉम्प्लिकेशंस है, तो अकेला मॉडर्न मेडिसिन नहीं हैंडल कर सकता. और वो दिख रहा था, क्लियरली दिख रहा है, अभी भी दिखता है. इसीलिए एक वाइज फिजिशियन वुड ऑलवेज वांट कि भाई अपना मेरे पास पेशेंट एडमिट हुआ है या मेरे पेशेंट अगर फॉलोअप कर रहा है मेरे पास, तो डेफिनेटली उसको रिलीफ मिलना चाहिए, सब्सटेंशियल रिलीफ मिलना चाहिए. तो अगर मैं किसी पेशेंट को स्टेरॉइड दे रहा हूँ और देख रहा हूँ कि नहीं फर्क पड़ रहा है, तो स्टेरॉइड के साथ कोई एडिशनल मेडिसिन हो सकता है, स्टेरॉइड विड्रॉ हो सकते हैं. अब स्टेरॉइड की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस वगैरह सब चीज़ हो रहा था, तो कितने पेशेंट्स को हम लोग. What was the reason during starting of COVID? They used to give tens of antibiotics like Flagyl. Like, what was the reason? Due to, are they going to kill virus or bacteria? What? It was a small question, and it's really pending that many people they took lots of antibiotic initial stages. See, कोई भी एपिडेमिक जब चालू होता है तो देयर इज अ लेवल ऑफ कंफ्यूजन. फिर जैसे जैसे बिल्डअप होता है कि मैंने वायरल एपिडेमिक जरूर था, बट वायरल एपिडेमिक के साथ लोगों को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा था. पीपल वर गोइंग डाउन. नोजोकोमियल इन्फेक्शन, मतलब अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, हॉस्पिटलाइज हो कोविड के लिए, बट साथ में दूसरे पेशेंट अगर ट्यूबरकुलोसिस था, तो आपको भी कोई दूसरा कोई इन्फेक्शन हो रहा था, है ना. नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल बेस्ड इन्फेक्शन काफ़ी हो रहे थे. सो ये सब भी रीज़न थे. इसलिए बहुत सारे सही गलत इज टोटली पेशेंट बेस्ड, वो हम बोल नहीं सकते. बट इतना हाई यूज ऑफ एंटीबायोटिक वाज नॉट फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ कोविड. दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, आते रहेंगे. हम यूं ही ऐसे डायनामिक टॉक्स में बातें करते रहेंगे. हमारे साथ जुड़े रहिए. एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुजम्मिल. हम फिर आएंगे जद्दा. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया.